हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एलसीएम का। आपने सुना भी होगा, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलसीएम? दिस टर्म स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म and the long form is L stands for lowest, C stands for common, and M stands for multiple. So the term LCM stands for lowest common multiple. So now you would ask me, what is this multiple? ये मल्टीपल क्या होता है? चलो भाई वो भी देखते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो होता है जो भी आपके टेबल में आता है। जैसे आपने 2 का टेबल नोट डाउन किया तो 2, 4, 6, 8, 10, ये सब 2 के मल्टीपल हो गए। 3 का किया, 3, 6, 9, 12, 15, तो ये सब 3 के मल्टीपल हो गए। ऐसे ही 5 का, 5, 10, 15, तो 10, 5, 15 जो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो एग्जैक्टली मतलब, या फिर इन अदर वर्ड्स जिसे हम डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो आए, ज़ीरो बनाए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एलसीएम नहीं, पहले हम मल्टीपल ही देखते हैं भाई। So multiple, I will write it down. So multiple is when remainder is 0, the dividend is called the multiple of divisor. Okay, I'll write it down here. When the remainder is 0, the dividend is called the multiple of divisor. So आपको पता चला मल्टीपल क्या होता है? व्हेन द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, जब भी हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं और हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम डिविडेंड को बोलेंगे मल्टीपल। किसका? डिवाइजर का। द डिविडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ डिवाइजर. सो आई विल एक्सप्लेन द सेम विद सम एग्जांपल्स. सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ वी डिवाइड 25 by 5, you know that 5 5 ja 25, so here the remainder is 0. Okay, and we all know that this is called remainder, and here this one is called quotient. And this you know is divisor, and this 25 is called the dividend. Okay students, so now I will repeat the statement or the definition of multiple. When the remainder is 0, the dividend is called the multiple of divisor. So in this example you can see that remainder is 0 and this is divisor and this is quotient. This is quotient, this is dividend. Okay, and according to our statement, dividend should be called the multiple of divisor. So here 25 is the multiple of 5. So I will rub it down, rub it now. So 25 is the multiple of 5. We will understand the same with a few more examples. In the previous example, we saw that 25 is the multiple of 5.
Similarly, if I divide 42 with 7, so we all know that 7 into 6 is equal to 42. So remainder will come again 0. And if remainder is 0, we all know that dividend is called the multiple of divisor. Here the dividend is 42 and divisor is 7. So we will say that 42 is the multiple of 7. So I hope everyone should have understood the same. What is the meaning of multiple? Whenever we do the process of division and in this process the remainder comes 0, then the dividend will always be called the multiple of divisor. Here divisor is 7 and dividend is 42. It is true in every case, be it any example. Like if we divide 60 by 10, remainder will come 0. So 60 will be the multiple of 10. एंड लाइक दिस हम कोई भी एग्जांपल लें, हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 0 आते ही डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आई होप एवरीवन शुड हैव understood what is multiple. So now let us move forward. So this is one way of understanding multiple, and we have one another way of understanding multiple. We will discuss that now. In other language, we can say that multiples of a number are the answers that we get in the table of that particular number. I will write it down here. Multiple of a number is the answer that is obtained in the multiplication table of that number. Is the answer that is obtained in the multiplication table of that number. मल्टीपल वह नंबर है जो हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन टेबल में. जैसे ही हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं तो हम ऑब्टेन जो भी हम आंसर आता है उसमें तो हम उसे मल्टीपल बोलते हैं. जैसे हम 2 की टेबल लिखते हैं भाई अब. सो वी विल गेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, like this, so on. So here we have written to the multiplication table of 2 and the answers that we have obtained is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. So these all numbers will be called the multiple of 2 because we started writing the table of 2. Same in the case of 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. like this. So here we started writing the table of the number 5, and in the table we obtained all these answers 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. So these all 5, 10, 15, 20, 25, 30 are the multiples of 5. I hope in this way it is also clear. सो हमने मल्टीपल को 2 तरीके से समझा. एक तो जब रिमाइंडर 0 बनाते हैं, रिमाइंडर 0 बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में ही आ रहे होंगे जो मल्टीपल हैं हमारे किसी भी नंबर के. गेटिंग माय पॉइंट. सो अब हम आगे चलते हैं. सबको समझ में आ गया होगा मल्टीपल. तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई,
हम देखेंगे आप के सामने आएंगे अब कुछ बातें आएंगी, जैसे फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल। तो ये सब क्या होता है? जैसे भाई मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा? 7 × 1 इज इक्वल टू 7। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। Similarly, if I ask you second multiple, then you will say that second multiple of 7 is 7 × 2 equal to 14. This is second multiple of 7. ठीक है भाई। Now coming to the third multiple, so we will simply do 7 × 3 is equal to 21. This is the third multiple of 7. किसका थर्ड मल्टीपल भाई? 7 का। ठीक है, तो 7 × 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, सो नाउ दिस प्रोसेस गोज ऑन। 7 × 4 फोर्थ मल्टीपल, 7 × 5 फिफ्थ मल्टीपल of 7. So like this it will continue, and this case is true in every number. In the case of every number, may it be 5, 7, 9, 10, 11, 12, whatever, any number you take, if you multiply that with 1 you will get the first multiple, and if you will multiply the same with 2 you will get the second multiple. Like this, if you will multiply the number by 3 you will get the third multiple. This is also very important concept which you need to understand. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। मल्टीपल्स ऑफ 7, ऐसे मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा 5 × 1, मल्टीपल ऑफ 15 हो जाएगा 15 × 1, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 हो जाएगा 25 × 1, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 25 हो जाएगा 25 × 2 इज इक्वल टू 50। सो दीज आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल। आप एक बात नोटिस करोगे यहाँ पे, मल्टीपल जो होते हैं, फर्स्ट मल्टीपल आ रहा है 7 और हमारा नंबर क्या था? 7 के हम मल्टीपल्स निकाल रहे थे। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 7 निकाल रहे थे भाई हम। तो हमारा पहला मल्टीपल क्या आया? 7 × 1 7, सेकेंड क्या आया? 14, थर्ड क्या आया? 21। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जो मल्टीपल्स होते हैं 7 के निकाल रहे हैं तो 7 से छोटे नहीं हो सकते भाई कभी भी, या तो 7 के इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे। मल्टीपल्स आर ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। ठीक है भाई, और हमने आपने ये कंडीशन देख भी ली, 7 × 1 7, 7 से छोटा तो नहीं है ना, 7 के इक्वल है, तो 7 से इक्वल होगा उसके मल्टीपल्स या उससे बड़े होंगे। जैसे 14 भी मल्टीपल है भाई 7 का, कौन सा मल्टीपल है? सेकेंड। तो 21 भी ग्रेटर देन है किससे? 7 से, तो थर्ड मल्टीपल है। फोर्थ मल्टीपल 28, ये भी ग्रेटर देन है। तो आप इसको अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो भाई। क्या लिख सकते हो? मल्टीपल्स आप लिख सकते हो, मल्टीपल्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, या तो इक्वल टू होंगे या ग्रेटर देन होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या होंगे? 10 के मल्टीपल्स होंगे भाई 10, 20, 30, 40, 50, 60 एट्सेट्रा। ठीक है भाई, ये चलते जाएंगे भाई, इनका कोई एंड नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू द मल्टीपल्स, मीन्स मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। तो आपको एक और बात पता चली इस एग्जांपल से कि भाई ये काउंटिंग चलती रहती है, काउंटिंग गोज ऑन, सो देयरफॉर द मल्टीपल्स गोज ऑन। 10 के मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, एंड सेकेंड कंडीशन व्हाट यू हैव understood here is that multiples are uncountable। हम मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, सो ये बातें थी कुछ। एक और बात जो है मल्टीपल के बारे में आपको जाननी चाहिए, वो है कि भाई एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर
वन का मल्टीपल होता है। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि भाई कोई भी एग्जांपल दूँ, 11, 13, 14, 15, 19, 25, कुछ भी ले लो, 35, 77, 150, एनीथिंग, एनी नंबर, सारे आप देख लोगे किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन से। तो ये सारे किसके मल्टीपल होंगे, वन के। वन से तो भाई कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई होता ही है, सेम नंबर आएगा। जैसे 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो 11 आ जाएगा, 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो 13 आ जाएगा। तो 13 किसका मल्टीपल है, वन का। सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। ठीक है भाई, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। ठीक है भाई, हर नंबर किसका मल्टीपल होता है, वन का। सो आपने तीन बातें पढ़ी हैं मल्टीपल्स की। एक तो ये इक्वल टू या ग्रेटर देन द नंबर होता है, एक मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल, और एक आपने थर्ड बात क्या पढ़ी है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। हर नंबर किसका मल्टीपल होता है, वन का भाई। ठीक है, सो मल्टीपल्स, आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन बाय नाउ। सो वी विल मूव फॉरवर्ड and we will understand the common multiples. After multiples, our next topic comes common multiples. So first you have to write down the all the multiples and then you have to find the common multiples. It's very simple as the name suggests. जैसे नेम बता रहा है भाई, common multiples मतलब जो दो चीज़ों में, दो नंबर में कॉमन हो। कॉमन मतलब दोनों में ओकर कर रहे हो, दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है भाई, सो we will write the heading as common multiple. कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है भाई, तो हम अब हम देखते हैं। जैसे आई सेड, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। मैंने आपसे पूछा 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं भाई। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। तो आप क्या करोगे, पहले 2 का टेबल लिख लोगे भाई। 2 का क्या होता है, 2, 4, यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं भाई हम, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है भाई, 14, 16 and 18 and 20। ठीक है भाई, अब हम क्या लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे भाई। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30। ठीक है भाई, तो हमने 2 का टेबल लिख लिया, 3 का टेबल लिख लिया भाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में मल्टीपल चेक करेंगे कि भाई दोनों के टेबल में, दोनों के मल्टीप्लिकेशन टेबल में कौन से नंबर्स या फिर मल्टीपल्स ओकर कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि भाई एक तो पहला मल्टीपल है 6, 6 यहाँ भी है, देखो 6 यहाँ भी है। ठीक है, अब सेकंड देखो, चेक करते हैं भाई सेकंड कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो दोनों में ओकर कर रहा है। 4 नहीं कर रहा, 9 नहीं कर रहा, 12 नहीं, 8 नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, 12 देखो भाई 12 कर रहा है भाई ओकर। 12 यहाँ भी आ रहा है और 12 3 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो सेकंड कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आया, 12। अब थर्ड कॉमन मल्टीपल देखते हैं भाई। 18 देखो, 18 यहाँ भी आ रहा है और 18 2 की टेबल में भी आ रहा है भाई। ठीक है, तो थर्ड कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 18। तो हमारे पास 3 कॉमन मल्टीपल आए हैं,
बिटवीन 2 and 3 व्हाट आर दे? 6, 12 एंड 18। बाकी और सब कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है भाई। कॉमन मल्टीपल मतलब जो 2 की टेबल में भी आ रहा है और जो 3 की टेबल में भी आ रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे दोनों की टेबल में आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ओकर कर रहा है। तो हमने देखा 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे भाई? 6, 12 एंड 18 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। ठीक है भाई, तो ये होते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब हम आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहली बात, आप मल्टीपल्स निकालोगे, फिर आप कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे, और फिर आप उनमें से लोवेस्ट सर्च करोगे। जितने भी आपके पास कॉमन मल्टीपल आते हैं, चाहे 5 आए, 10 आए, 15 आए, 2 आए, 4 आए, कितने ही हो भाई, एनी नंबर, सबसे पहले आपको कॉमन मल्टीपल्स सर्च करने हैं भाई। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद आप क्या करोगे? उनमें से लोएस्ट सर्च करोगे। जैसे भाई मैं आपसे पूछ लूँ, अभी तक मैंने आपसे पूछा था व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, तो आपका आंसर था 6, 12 एंड 18। तो अब मैं ये ना पूछ के, अब मैं आपसे पूछ लूँ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3। ठीक है भाई, अभी तक आपसे मैंने पूछा था कॉमन मल्टीपल्स, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। प्रोसेस वही है, पहले आपको 2 and 3 के मल्टीपल्स निकालोगे आप पहले। ठीक है भाई, मल्टीपल्स निकालने के बाद आप क्या करोगे? उन सब जो भी मल्टीपल्स आपके पास आए हैं उनमें से लोएस्ट सर्च करोगे। तो जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है हमें, तो 2 and 3 के हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या थे? ये थे भाई। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में से हमें लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, वही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो पहले ही थे भाई ये, अब लोवेस्ट हम सर्च कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम बेसिकली। तो 6, 12 एंड 18 में भाई आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब बता सकते हो कि सबसे लोवेस्ट कौन सा है। लोवेस्ट मतलब छोटा, जो कि अमाउंट में डिजिट जो सबसे छोटी हो। तो 6, 12 एंड 18 में सबसे लोवेस्ट डिजिट कौन सी है? 6। ठीक है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है? 6। ठीक है भाई, 6। तो हमारा बेसिकली एलसीएम ही क्या है? 6। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3? एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है भाई, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका एलसीएम है, और यही मैंने आपसे पूछा था। तो देखा भाई हम एलसीएम पे कैसे पूछे। पहले हमने एम से देखा क्या होता है? मल्टीपल, फिर हमने सी एम से देखा क्या होता है? कॉमन मल्टीपल, और फिर लास्ट में हमने एलसीएम से देखा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? लोवेस्ट। तो लोवेस्ट हो जाएगा 6। ठीक है भाई, तो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं भाई। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन हम हर बार ऐसे नहीं करेंगे कि भाई एलसीएम निकालने के लिए हम टेबल लिखेंगे या क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे जो कि छोटा है। ऐसे तो भाई बड़ा टेबल दे दूँ मैं आपको, ये तो 2 और 3 के थे, आपने लिख लिया। मैं आपको टेबल दे दूँ 57 का और 97 का, भाई इनका एलसीएम बताओ, या 157 का, या 193 का, कुछ भी दे दूँ मैं XYZ भाई बड़ा नंबर, तो आप ऐसे टेबल निकालने लग गए तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन तो इसलिए ये मेथड बस आपको समझाने के लिए है, हम हमेशा टेबल नहीं करेंगे, हमारे पास और बहुत मेथड है एलसीएम निकालने के, तो उनके बारे में पढ़ते हैं भाई अब हम। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो हमारे पास भाई 2 मेथड है, 2 मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम।
ठीक है भाई, हमारे पास टू मेथड्स हैं टू फाइंड द एलसीएम। तो फर्स्ट मेथड है भाई हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भाई। फर्स्ट वन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड वन है क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड है सेकंड मेथड। तो ये दो मेथड होते हैं प्राइम वो एलसीएम निकालने के भाई, ठीक है। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आज हम डिस्कस करते हैं पहला मेथड जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेकंड वन को मैं रब कर देता हूँ भाई, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें क्या होता है भाई, हम लेके चलते हैं दो नंबर, किसी भी दो नंबर का लोएस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो हम सोच देखते हैं भाई 36 एंड 64 दो नंबर आपको दे दिए मैंने, इनका अब हम एलसीएम निकालते हैं कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, बेसिकली ये फॉर्मेट रहेगा आपका, 36 को ऐसे लिखोगे और ये टेबल बनाओगे। तो सबसे पहले आप सबसे छोटे से करोगे भाई, ठीक है।